श्री राधा रमणो विजयते। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री सरस्वत्यै नमः। ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। ओ सबको प्रणाम। आइए मुकुल जी। राधे राधे। अब क्या बताएं आपको, देखते ही देखते, एक्चुअली सुनते ही सुनते शिव तत्व के कथा का आखिरी दिन आ ही गया। आज 28 दिन कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला। हम झोली प्रसार के आए थे, भर कर जा रहे हैं। चारों तरफ के भूचाल के समय में भी अपने अंदर शांति अनुभव कर रहे हैं। महाराज श्री, आपने कल कहा था कि कथा सुनाते वक्त एक आध बार आपकी आंखें भर आई थी। आपको मैं बताऊं, हम लोगों के आंखें कई बार अश्रु से भरे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या सुनाया, क्या बताया, आपने जिस भाव से कहा, जिन शब्दों का व्यवहार किया, इसलिए भी। I want to take this opportunity to thank you. Thank you from the bottom of our hearts, on all our behalves, all of us present here. हम सब आपसे शिव तत्व का महाप्रसाद लेकर जाएंगे, हमारे जीवन में पिरो कर जाएंगे। शिव तत्व हमारे साथ रहेगा। स्पेशली आपने जिस तरह से सिखाया है, how to, when to, what to. You said, never get attached to the speaker. We will try. जितने बार कहें कम है। बहुत बहुत आभारी हैं। Thank you once again. And how can we forget Niket Ji Khetan for the way he has selflessly and patiently hosted these sessions. Thank you so much, Niket Bhaiya and the Awareness Foundation. We truly appreciate it. And now it is my proud privilege to welcome actor, writer, director, producer, dancer and politician Srimati Hema Malini ji. Though Hema ji needs no introduction, as I have been given this responsibility, I will say a few lines. Amongst the numerous accolades and awards, a few that must be mentioned are: in 1973, the Filmfare Award for Best Actress. In 2000, the Filmfare Lifetime Achievement Award, and also the Padma Shri by the Government of India.
Hema Malini ji has also served as the chairperson of the NFGC. From 2003 to 2009, she was a member of the Rajya Sabha, and 2014 was elected to the Lok Sabha. We all know that Hema ji's film Dream Girl had become very popular and was a big hit. A biography was published in 2017 titled Hema Malini Beyond the Dream Girl. Hema ji is equally accomplished in all three: singing, dancing, and speaking. So friends, tighten your seatbelts and get ready to be mesmerized by her. And now I would like to invite the multifaceted Hema Malini ji to take up the screen space, please. Thank you. Thank you so much for this wonderful opportunity to be with all of you. First, let me offer my prayers. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Brijabhanusute Devi Pranamamya Hari Priye Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. परम आदरणीय श्री अभिषेक गोस्वामी जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, आपके इस शिव तत्व के इस सागर में मुझे भी शामिल होने का, भाग लेने का अवसर दिया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपकी। मैंने भी 28 डेज में कई बार शिव तत्व को सुना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। इसके अलावा आपने मधुराष्टकम के ऊपर भी बहुत सुंदर बोला है, कृष्ण के ऊपर। आप सब संत हैं ब्रज के, और मुझे भी इतनी खुशी होती है कि उस ब्रज की मैं एक सांसद बन के बैठी हूँ, जो कृष्ण की नगरी है, कृष्ण के रची हुई इतनी लीलाएं हैं, उसके बीच में इतने बड़े बड़े संतों के बीच में मुझे भी एक मौका मिल रहा है आपके सब साथ में जुड़कर रहने का। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए शिव तत्व को 28 दिन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इस ज्ञान रूपी सागर में आपने सारे भक्तजनों को डुबा कर लेकर आया है। तो क्योंकि मैं उसमें आपका ग्रुप में से मुझे पता चलता है कि क्या क्या सब लोग बोल रहे हैं कि उनको कहते हुए सुना कि उनको बाहर आना ही नहीं है। They want to be in that mode. Such beautiful, wonderful experience you gave. It's such a really wonderful experience, wonderful journey to take up at this time of difficult time of corona pandemic. इस वक्त ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लोग हम देख सकते हैं कितने लोग, how many people are suffering. They are so worried about this uncertainty. They are not able to come out of it. Some of them are facing fear, some of them depression, so much of anxiety is there in them. Some of them become lazy, they don't know what to do, as if the whole world is got finished. But this is a time one thinks, one needs that spirituality is so important. कितना अच्छा है ये spirituality में अपने आप को डुबाना. So, and then to have a guide, have a guru like you, it's so important. So you can take all of us from this journey and make us focus to a right thing, right path. You are able to take us. So it is really, we are very thankful to you for this wonderful journey. And then in this journey, you have shown the whole abode of Lord Shiva. And what is Shiva? Shiva Tattva क्या है? आपने इतना beautiful सुनाया, समझाया,
जो समझ में नहीं आता तो भी वो सुन सुन के ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ गया, क्योंकि भगवान की कृपा होगी अपने आप समझ भी लेंगे कि हाँ ये इसका मतलब ये है। इसलिए सिर्फ ध्यान देकर सुनने की आवश्यक है, instead of getting worried and getting yourself into a bad mood of this corona, because every time you watch the television you are getting into a real horrible mood. So इससे हटके ऐसे आप लोग जो सुना रहे हैं कथा, इसमें अपने आप को डुबाना कितना अच्छी बात है। And you have taken us to a abode of Lord Shiva, I said. तो आपने तो कहा था कि आप हमेशा भगवान के कैलाश हर साल जाते हैं, तो अगले साल जब जाएंगे तो आप बिल्कुल भूलना नहीं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द participant going to travel along with all of you. This journey I must come. And I want to say that this is the श्रावण का महीना और आप कथा सुना रहे हैं शिव जी का, बहुत ही बढ़िया है। ब्रज में तो ब्रज इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हरियाली के इस मौसम में हर जगह यू कैन विजुअलाइज एज एन आर्टिस्ट, मुझे दिखाई देता है कि कदम्ब के पेड़ के नीचे कैसा राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं। बिकॉज दिस सीक्वेंस आई परफॉर्म एज एन आर्टिस्ट ऑन द स्टेज, मैं उसके परफॉर्म करती हूँ जी। एंड नहीं इधर वेंटा सॉरी इधर वो गीत है मैं जो नृत्य करती हूँ। तो ब्रजवासी तो बहुत ही लकी है, सौभाग्य है उनको कि हर जगह इस वक्त कृष्ण का जो है हिंडोला पड़ा कदम की डाली, झांकी है मनहारी, झूले राधा प्यारी, झुलावे बनवारी। This is the words for my dance which we do, Radha and Krishna. दिव्य हिंडोला देव झुलाने वाले, एक सृष्टि चलाने वाले, राधा माधव की कहे कहानी, नटी बन नाचे प्रकृति सारी, झांकी है मनहारी। एंड देन दूसरा है, हो आनंद विभोर, मोर निज कला दिखाने चाहे। मतलब मोर भी सब बाहर आ गया अपना नाच दिखाने के लिए। भगवत और भगवती को करके नृत्य दिखाना चाहे। डूब गया जो जुगल रूप के मधुरस में, कोई सामवेद दोहराने लगा, कोई नाट्य शास्त्र अपनाने लगा, आनंद आने लगा, परम आनंद आने लगा। मतलब दिस इज द atmosphere at the moment, so much of Haryali and Shravan ka mahina, Jhula, Hindola, and I think as an artist you can visualize, you can see, but of course with your spiritual eyes only you can see. That is the thing. So those who are spiritually elevated will be able to see all these beautiful things of Braj, and we are also lucky to be part of that place. And I must thank you, Abhishek ji, so much for giving me an opportunity to perform second time in Radha Ramanji Mandir. Radha Ramanji, such a beautiful temple, such a beautiful decor, and वो देख के मन सच्चे मोह लेता है। और कृष्ण के ऊपर मैं क्या कहूँ, he is a lord of, he is 16 कला संपूर्ण परिपूरित है भगवान कृष्ण। ऐसे कृष्ण के रूप आप मनोहर दृष्टि है, आप हमेशा राधा रमन के मंदिर में देखते आ रहे हैं। मैंने उसके ऊपर एक कुछ गीत मुझे गाने को मिला था भजन के रूप में, तो मैंने 2 साल पहले उसको प्रस्तुत किया था। तो अब अगर आप चाहें तो मैं इसको सुना सकती हूँ। सुना? Yes, बिल्कुल सुनाइए ना। मैं देखिए, मैं आई एम नॉट ए सिंगर, बट बड़ा मन करता है क्योंकि अभी because of the Zoom meeting and all, we have to keep sitting, we cannot just jump and dance around, so it's better I show my small talent. इतना कुछ खास नहीं है, but ऐसे भक्त मैं गा सकती हूँ।
प्लीज भक्त की तरह से ही गाइए। यस, कृष्ण की उस छवि जो राधा रमन जी की है उसको बराबर ये मैच करता है। कर कमल में बंसी धरे हो, अधर श्याम लगाए। कर कमलन में बंसी धरे हो, अधर श्याम लुभाए। मंद मंद मुस्कान अधर अजू, मंद मंद मुस्कान अधर अजू, नैनन श्याम लुभाए। कर कमलन में बंसी धरे हो, अधरन श्याम लुभाए। मोर मुकुट हो कृष्ण चंद के, मोर मुकुट हो कृष्ण चंद के, मोतियन मस्तक माला। श्याम श्याम है श्याम बदन हो, श्याम श्याम है श्याम बदन हो, ब्रज का प्रिय गोपाल। कर कमलन में बंसी धरे हो, अधर श्याम लुभाए। दिस इज द अमेजिंग, आनंद आ गया, अद्भुत। हाँ जी, बहुत सुंदर। आपको अच्छा लगा? अरे 8 भजन गाया था, 8 भजन I sang, composed by great masters of music, Pandit Jasraj ji, हरि प्रसाद चौरसिया जी, ऐसे सभी लोगों का है। अच्छा जी, तो we are talking about Shiva. You are talking about it, so I got involved in this whole experience, your journey. So I really enjoyed being there. So but as heard from many gurus, कि शिव क्या है? कि शिव is infinite. He is the entire universe. He is Mahakal, time of time, cause of cause. He is the energy. So these are the description of Lord Shiva, which is so wonderful to hear it, you know. तो सुनने के लिए अच्छा है, बहुत ही you can go into a very completely in a meditation mode when you hear this thing. तो उस वक्त हमें sorry, 1 second. एक मिनट, I'm just oh, okay. So now this is when you see Lord Shiva like that, तो मन में यही बात आती है, ऑन पढ़ना है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। ये सब देखे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि घबरा जाएंगे कि what is it, where is Shiva? You can't see it. Is the whole universe is Lord Shiva. That's what you have also described him. But for us, for a normal human being, see, it is for a very elevated souls who can merge in that thing. But we as a very small people with a very little experience, we need to see the Lord in a form. Like, you need a shape. So what we as a कलाकार लोग हम काफी visualize कर सकते हैं शिव जी कैसे होंगे. So he is not the person who walked into this planet some age or some युगों पहले और चल के पैदल चल कर आए और माउंट कैलाश में बैठे हैं, ये तो नहीं है. But we have to have a particular form so that we can do proper पूजा प्रेयर करने के लिए हमें एक आकार चाहिए. That is what is called उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार चित्रित करते हैं हम कलाकार लोग. भले हम कोई शिल्पकारी हो या आर्टिस्ट पेंटिंग हो, like musicians, singer, dancers, उस आकार को हम लोग क्रिएट करते हैं. And we visualize Lord Shiva as a most handsome, some 8 to 9 feet tall, with a very beautiful jata and the most fascinating, wonderful features. That is Lord Shiva, you know. So उसको देख के भी एकदम मन खुश हो जाता है कि this is Lord Shiva. उस रूप में भगवान लॉर्ड शिवा ने कई रूप को लोग प्रे करते हैं. Like he is called as a Vaidyanath also. Vaidyanath is a doctor. In south he is called Vaidyanath. He is a आदि योगी है भगवान शिवा. तो वो काफी as a doctor he used to do a lot of help to people and all. I believe that is Vaidyanath. But बहुत सारे नाम है उनका. But हम as a dancer I will worship him as Lord Nataraja. हमारे ब्रिज में ब्रिज के हैं हमारे कृष्ण जो हैं वो नटवर नागर हैं. He is an expert in dance. He is the most wonderful God who is always in a श्रृंगार रस. उन्होंने हमेशा श्रृंगार रस को depict किया है, like dancing with all the gopis and all. महारास रास रचते रहे हैं. So he's that नटवर नागर जिनको कहते हैं. Whereas हम Nataraj is Lord of Dance. He is the one who created dance. तो लॉर्ड नटराज के बारे में जब बात करते हैं, मैंने एक नृत्य किया था, उसके बारे में आता है मेरे मन में कि शिव तांडव नृत्य उन्होंने किया था. See, there are so many शिव का 5 मोड है: सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और स्थिरोभाव. That is creation, sustain, dissolution, blessing and compassion. तो उसमें से जब and he has performed different tandavas. One is Raudra Tandav when he is in a very angry mode. That is Daksh यज्ञ में उन्होंने जब सबको खत्म किया, that was a Raudra Tandav. Then he does Ananda Tandav also. And also Prakriti and Purush Tandav, वो भी है. That is the creation. For creation he does that kind of a dance, which is Lord Shiva with Parvati
So Parvati doing Lasya, very nice, beautiful form of dance, and Shiva doing the Tandava dance. That is there. Purush Prakriti ka. And then Sandhya Tandav. That is supposed to be the giving salvation to the bhaktas. That is also another form of Tandava which he does. But the most interesting thing is Ananda Tandav. So when Bhagwan शिव जी जब डांस कर रहे थे तो उनके घुंघरू में से एक घुंघरू आकाश की ओर उड़ गया था. It went up. So he just looked like that up. So it came down on his head. So it is called Tat. Then he did this. So it came on his shoulder. Tat, Dhit, Dhit. Then it came on his janga, on his thighs. Tom, Tom. And then it fell on the earth. It is Tati Tom Nam. Ta Di Tom Nam. Tat Di Tom Nam. Tat Di Tom Nam. Tat Di Tom Nam. You know, this is the dance का बोल इसमें से निकलता है. Every word ta से कुछ निकला sound the ध्वनि. Then when you hear Tom में you can hear the sound of Om. Tom. So every word, every this बोल है उसमें से नृत्य का सारा बोल निकला है. So when he was performing this beautiful Ananda Tandav, खुद खुश होकर जब कर रहे थे, उनकी जो devotees हैं साउथ में भी, that is when Chidambaram you must be knowing, जिसको short form में short है उसका पूरा description किया जाए तो चित आम्बरम, मतलब चित के मन के अंदर उस आकाश चितंबरम है. तो वहां से the devotees like Puli and Patanjali, they had the desire to see that Lord's dance. He is dancing somewhere in the cosmic wherever. They wanted to see, so they requested, I want to see. So उन्होंने अपने चित्त द्वारा उस भगवान शिव का जो नृत्य किया था तांडव, आनंद तांडव को देखने को उनको अवसर मिला. This is one description which I have experienced as a dancer. I perform. So मुझे ये आपको बोलने का बड़ा मन किया तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. And then when we talk about पुरुष प्रकृति, because हम शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी देखते हैं. अर्धनारीश्वर. He is a combination of Parvati, the beautiful Parvati, and Shiva. दोनों का the combination is अर्धनारीश्वर. तो उन्होंने उसमें कैसा भाव दिया. So this I want to show you, which I perform on the stage. You know, when I do a solo Bharatanatyam dance, I do this item. So it is under. I want to have. I hope I'm all right, Abhishek ji. Is it all right what I'm speaking, and is it all right? Should I continue or should I stop it? Absolutely. Please continue. Everybody is spellbound. Okay. Okay. Yes. So that is कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवामी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ये इसका डिवोटी का है। इसके बाद then I do this number called अरे तो ये आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। इट इज आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है। चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, चांपेय चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, धम्मिल काये जटाधराये, धम्मिल काये जटाधराये, नमः शिवाय नमः शिवाय, चांपेय गौरार्ध शरीर काये, कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताये, कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताये, प्रजापुंज चितरजापुंज विचर्चितायै, कृतस्मराय विकृतस्मराय, कृतस्मराय विकृतस्मराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, चांपेय गौरार्ध शरीर काये। ये अर्धनारीश्वर का जब पार्वती कैसे लग रही है एंड हाउ शिवा इज लुकिंग, दोनों कैसे एक ही ऑर्नामेंट्स हाउ दे आर वेयरिंग, व्हाट आर द थिंग्स, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट। इसमें एक और अंतरा में बोलती हूँ। जनत वनत कंकण नूपुराये, जनत जनत कणत कंकण नूपुराये, पादांबुज फणि नूपुराये, जनत कणत कंकण नूपुराये, पादांबुज फणि नूपुराये, हेमा हेमा गदाये, भुजंगदाये, हेमांगदाये भुजंगदाये, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, चांपेय गौरार्ध शरीर काये। इसमें बहुत अंतरा है, लेकिन I just picked up to, I think the sur is little high for me, but anyway I managed to express it for you. It is just beyond words, actually. I'm happy that I get an opportunity to speak all this. No. I mean, my experience as a dancer, I am trying to say that because so it is so important to know we dancers are able to transform the people, you know, who are watching, the audience who are sitting and watching. They are able to, we can transport them to a different world, into a spiritual world. That is the thing, you know. कलाकारों में उतनी शक्ति है कि वो सब कर सकते हैं। तो जैसा आप प्रवचन के द्वारा सब लोगों को इतना ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपने आप शिव तत्व में सारा कितने सोल्स को आपने एलिवेट किया है। So similarly, we artists are also able to elevate the people those who are ignorant people who are watching, sitting and seeing the dance. They just see that कोई artist है, ये कौन है,
but they don't understand the deep depth of it, कि क्या हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, तो उसके बारे में उनको समझाने का एक तरीका है, ये अवसर मिलता है. So I really feel happy that we are born as an artist, so I'm able to do a lot of things. You know what you have done today? हाँ जी. ऐसा लगा जैसे साक्षात जो सावन का सोमवार है, उसमें हम सब आज आपके भाव भंगिमा, आपके गायन, आपकी कटाक्ष, आपके स्वरूप के साथ अपने वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का महाभिषेक कर रहे थे. Yes, गोपेश्वर महाराज तो हमारे मथुरा में, वृंदावन में ही हैं, जो नृत्य देखने के लिए आते हैं, तो बिल्कुल राधा कृष्ण का. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुकुल जी ने आपका पहले प्रारंभिक चरण पर इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने आपका वो बाहर के जगत वाला इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन एक इंट्रोडक्शन रह गया जो मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए. जितने यहाँ पर वैष्णव और जो दुनिया भर में इस वीडियो को देखेंगे अब लोग, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम न तो किसी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से बात कर रहे हैं, न किसी फिल्म एक्ट्रेस से बात कर रहे हैं. हाँ, आपके भीतर के कलाकार को नहीं छोड़ा जा सकता, वो एक परफॉर्मर, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वी आर टॉकिंग टू मेरे राधारमण लाल की बड़ी प्यारी गोपी से बात कर रहे हैं. आप अंदाजा नहीं लगा सकते जितने लोग सुन रहे हैं संवाद को, कि मतलब एक है जो पहुंच जाए, पूरा जगत जिसको देख ले और मन में भाव उठ जाए किसी कलाकार के कि मेरा ठाकुर मुझे देख ले. तो जब हेमा जी आई हैं श्री राधारमण मंदिर में, जब आई हैं, तब आप इस दृष्टि से आई हैं, आप जगत के लिए नहीं आई, आप जगदीश्वर के लिए आई. जो भाव हुआ है वो बिल्कुल वैसा हुआ है. लेकिन आज आपको पता है, आपको यहाँ निमंत्रण देने का कंक्लूडिंग डे पर जो मेरा अभिप्राय था, वो ये अवश्य था कि आपने इतना अद्भुत बैलेंस बना रखा है अपने दोनों वर्ल्ड्स में. आप माया नगरी में रहती हैं, आपका हृदय ब्रज में, धाम में बसता है. नो डाउट उन्होंने आपको बोला कि everybody knows you beyond the dream girl, the book of yours, the coffee table book. But I feel this girl, still that girl has a dream of, Krishna kalpit dream. एक भरा हुआ कृष्ण का भाव भीतर उस सपने की तरह से सजो रहे हैं आप. और आज जो आप सबके बीच में बैठे हैं, ऐसा अनुभव हुआ जैसे आज आपने हम सबको उसमें स्नान करा दिया. ये अद्भुत स्नान है. ये श्रावण में आपको बताऊं, आज आपकी भाव भंगिमा में हमारे ठाकुर अपने जब अब झूले पर बैठेंगे हरियाली तीज को, तो आप समझना सावन तो आज ही चालू हो गया. बिल्कुल. कुछ मैंने बातें सोच रखी थी जो आपसे कहूंगा. एक छोटी सी प्रश्न है, क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में बैलेंसेस को बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है. आपने इस माया नगरी का बैलेंस और अपने वृंदावन के इस भाव का, भक्ति का बैलेंस, जो परम भक्त भाव भीतर सजोकर आप घूमती हो, आप समझना कितने रेड कारपेट्स पर आप चढ़ी होंगी, लेकिन उनका कोई आनंद नहीं है जब धूल से धूसरित ब्रज की रज में आपने विचरण किया है. आप इस बैलेंस को कैसे बना पाती हैं? बस इतना सा कहिए, उसके साथ हम और समय आपसे नहीं लेंगे, लेकिन ये जरूर चाहता हूँ. एक समय था, बहुत मैं बिजी रहती थी फिल्म शूटिंग में, तो उस वक्त मुझे ब्रज के बारे में पता चलता था, लेकिन आने का अवसर नहीं मिलता था. लेकिन मेरा फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करने का जो मौका था, अवसर था, वो अभी काफी कम हो गया है. मतलब है ही नहीं, समझिए अभी तो, क्योंकि सबके लिए समय होता है. So between for 20 years, almost 20-30 years, I was in the film industry. So I fully dedicated myself totally into it, and I did. Then I took over dance. As a dance ballet, I started performing. तो उसमें मैं पूरा concentrate करके लोगों में वो भी सारी कथाएं जो भगवान के लीलाएं, उसको मैं
परफॉर्म करती हूँ हर जगह, तो वो इसके लिए मैं काफी पॉपुलर भी हूँ, लोग को अच्छा लगता है कि मैं फिल्म स्टार हूँ, लेकिन मैं अलग अलग रूप में उनको मैं दिखाती हूँ, कभी दुर्गा बनकर, कभी महालक्ष्मी बनकर, कभी राधा, कभी द्रौपदी, ऐसा गंगा, कभी ऐसा अलग अलग रूप लेकर करना है। तो दैट इज बिकॉज आई हैव बीन एन आर्टिस्ट। एक देखिए, जब फिल्म शूटिंग करते हैं, वी आर प्रोजेक्टिंग a different characters. It's not me, it's not Hema Malini which is who is that. If I'm playing a role of Basanti, it's some village woman somewhere, but I have to understand the character, what she must be doing, how she acts, how she must be talking. Observing that, I'm able to project that thing. So similarly, whether to do the role of Durga, Lakshmi, Radha, so it is definitely it is because you are an artist, I'm able to adopt that quickly as possible. And the moment you wear the costume and other thing and come on the stage, of course the music also helps a lot, and also all my co-artists, everybody comes together and makes that whole atmosphere so wonderful, so divine. You know, it becomes very divine experience for people who are watching. And and also definitely it is the blessing of all the gods. Like अगर मैं दुर्गा बनूं, तो पहले तो मैं मुझे डर लग रहा था कि मैं हाउ विल आई परफॉर्म, दो आई प्रैक्टिस, मैंने सारा शो के लिए तैयारी कर लिया है, लेकिन जिस दिन पहला दिन जो शो करना था, स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है, तो घबराहट हो गई थी, मैं कर सकूंगी कि नहीं करके. Then that's the time I asked my Guru Ma, I'm scared what to do. She said, just leave it to God. You are doing Durga will take over, so you don't have to dance. She will come and dance for you. You know, these are the words she told me. She will come and dance for you. I said then the moment I go on this, because I was little scared that I may forget something, I may do something wrong. Some my co-artist के साथ join करके मैं कैसे करूँगी? ये fear था, वो सारा fear completely चला गया. Everything went so smooth, unbelievable it was. So similarly, one more experience I want to say, that I was preparing dance ballet, because I keep coming to ब्रज में आती रहती हूँ, तो इतना आनंद होता है, तो उसको डांस बैले में प्रोजेक्ट करने का था. तो I said, लेकिन पता नहीं वो म्यूजिक बराबर नहीं बन रहा, कुछ something is going wrong, what to do. So my brother used to say, you just leave everything to Mr. K. I said, what K? He will take over, don't worry. And exactly that's happened. You know, my brother, what he said, okay, he will take over. So it is actually, if he wants anything, he will make you do it. If I want to do something else, but he wants that I have to only dance, I have to project him, I have to bring the goodness, whatever he is, उन्होंने जो रचाई हुई लीलाएं दिखाऊं, तो वो खुद करके कराएंगे मेरे से. So this experience so beautifully, then all the Radha Krishna ballet and all came up. And then one more thing is, see, I told you that I visualize Shiva as like this, you know, very handsome, tall, and he will be like this, he will be like that. And I have always seen him like that. In my mind, I have seen him, he's like that. Ek vision hota hai. Then when I did this ballet Durga, so I needed a Shiva with me. He was performing. He was an artist. And but when I saw him, he's a very fine dancer. He was very good, excellent. But somehow मेरा imagination के मुकाबले में वो नहीं थे. तो मैं परेशान हो गई थी. मैंने बोला ये क्या, मैं क्या करूं? So I was wondering. Then I told Shiva, I don't know. I have visualized so beautiful. You are like this, you are like that. But my artist who is next to me, who is playing the role of Shiva, he is not that, you know, like that. Then, but so I don't know. You please come and take over. You know, I am telling the Lord Shiva like a small child. You know, so what do you say? Like devotees have to fight and get things from the God. You cannot be humble, or using big words. Zarurat nahi hai. In a very simple, like a child, I said, this performance is going to take place. I don't know. You better come and dance for me. That's all. You be with me, next to me.
And you won't believe it, after the show was over, see, people are coming and telling, आपका शिवा कितना सुंदर था. I said, yeah, really? This he, you know, that means what? He was there. Who was there? Lord Shiva was there performing with me. Otherwise, how is it possible? Then gradually, of course, that artist became like that. Very good. Excellent he became. That is the power of our devotion, your want, and his blessings. So it is a great experience I had, all this. So I'm just sharing with you. No, Abhishek. fantastic, I must say. And everything that we have shared here, I think this is going to go deep inside us and will also let everybody who's here experiencing it, I'm telling you, means, you know, you just had made the entire bhav so alive and so natural. Thank you. आपको किन शब्दों में मैं नमन करूं, और राधा रमन जी का सदैव आशीर्वाद आपके ऊपर रहे. और आप हमेशा हमसे बात करने के दौरान कह रहे थे मैं क्या बोलूंगी, और देखिए आप इतना सुंदर बोले कि मैं भूल गया हूं मुझे क्या बोलना इसके बाद. के means, you know, we have to just do the concluding part of the Shiva Tattva, but it has been an amazing having, you know, this time with you. So much. Thank you very much. Thank you so much for giving this opportunity. Choicest blessings to you always. And next we are doing a Meera session, you know, a talk series on Meera. So we will let you know, we'll keep you posted. But how should we say thank you so much? And as long as you are comfortable being here, please be here. And because we are doing the last concluding part of Shiva Tattva. But if you feel that you know, we want rest and everything, then I will share this YouTube thing with you. Yes, I will share the YouTube thing with you. Hari Bol, and thank you so much. Radhe Radhe. Hari Bol. Shall we start, Niketji? Please go ahead. Okay. I must say that this has been one of those amazing sessions. And, you know, Savan ka Somvar. And मतलब यहाँ पर आप समझिए कि ऐसा साक्षात लगने लगा कि आज वो बैठे भी थे और उनका रोम रोम नृत्य भी कर रहा था. लेकिन आपको बताऊं, क्योंकि जब किसी का जीवन समर्पित हो जाता है, जब कोई पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है. और हमने आपसे एक बात बोली थी, जो बोले सो हरि कथा. आप समझो सीधी सीधी बातचीत हुई, ऐसे ही वो हरि कथा बन गई. थोड़े बहुत हाथ हिल गए, वो नृत्य हो गया. थोड़े बहुत उठ लेंगे तो परिक्रमा हो जाएगी. कब होगा? जब आप अपने आप में निमज्जित होते हैं, आप समर्पित होते हैं. इससे सुंदर और क्या भाव हो सकता है. मैं मन से उनको प्रणाम करता हूँ. She has actually been, you know, inspiring people across the world, and how she literally brings out what is within her when she performs. Thank you, Hema ji. बहुत बहुत धन्यवाद. राधे राधे. मंगलाचरण हो चुका है, और जैसे हमने आप सबसे कहा था कि आज एक महाप्रसाद का वितरण होगा, और सबकी कमर कसी हुई है. आई होप एवरीबडी इज रेडी. अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, आप चिंता ना करें. मैं आज 30-40 मिनट ही बोलने वाला हूं. मैं अपने कंक्लूडिंग पार्ट को थोड़ा कंसाइज करने की चेष्टा कर रहा हूं. ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि आप सबों को खूब आनंद आए. तो भूत कंचुकी विमुक्त पुरुष परम शिवरूप हो जाता है. देखिए, कभी कभी आप सूत्रों में प्रवेश करते हैं तो सूत्र कैसे होते हैं, वो सूत्र क्या कहते हैं. यहाँ ये सूत्र कह रहा है भूत कंचुकी विमुक्त पुरुष परम शिवरूप हो जाता है. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड who's भूत कंचुकी and what is the meaning of भूत कंचुकी. भूत कंचुकी का अर्थ है पांचों तत्व जिनसे शरीर बना है.
वो पांचों तत्व जिनसे शरीर बना है उसके लिए वस्त्र जैसे हो गए। वो पांचों तत्व, पंच तत्व से ही तो शरीर बनता है। अगर वो पांचों तत्व उसके लिए वस्त्र जैसे हो गए हो, भूत कंचुक हो गए। हमारे ब्रज में जब किसी ब्लाउज की चर्चा होती है, भाई गोपियां धारण कर रही हैं, तो शास्त्र बोलता है कंचुकी धारण कर रखी और ऊपर से उसने मर्यादा का दुपट्टा ओढ़ रखा है। तो जो कंचुकी है, भूत कंचुकी, जिसके लिए शरीर मन, क्योंकि दोनों ही पंचभूतों से बने, यह स्थूल पंचभूतों से जो बना है वह शरीर, और जो सूक्ष्म तन मात्राएं से बना है वो है मन। यानी तन मात्राओं से बना है मन और पंचभूतों से बना है शरीर। ये दोनों एक ही सूक्ष्म स्थूल रूप से हैं। ये दोनों जब वस्त्र जैसे हो जाते हैं उसको भूत कंचुकी कहते हैं। जिस व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है किसी आवरण की, वो पंचतत्व ही तुम्हारा शरीर बनकर आ गए। देखो, दिस इज, आप एक बात समझना, इतनी मधुर संवाद सुनने के पश्चात तो थोड़ा यहाँ पर समय लगेगा सेट होने में, मुझे भी और आप सबको, क्योंकि कोई रस की धारा बहा गई हो इतनी भाव भंगिमा और कटाक्षों के साथ, तो हमारा कोई मेल नहीं है। तो आप समझो, जो मेल नहीं है वो हम वैसी बात कर रहे हैं जिसमें रस नहीं है, लेकिन इसके अंदर बड़ा गहरा सिद्धांत है। तो मैं आपको कहूं, वो तो स्मृति के रूप में आपके जीवन भर अंकित हो गया, जो आज का संवाद था हेमा जी के साथ। और जो अंतिम ये पार्ट्स हैं शेयरिंग के, तो एक अंतर है। इस देश में किसी एक परमात्मा के भरोसे ये बात नहीं कहती कि ये परमात्मा, हमारे यहाँ पर कभी हमारे यहाँ चर्चा इस प्रकार की नहीं हुई। हमारे यहाँ अगर परमात्मा तत्व एक है, लेकिन उसका जो फैलाव है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। इस देश की सनातन धर्म की जो विशेषता है, हमने हमेशा माना 33 कोटि देवी देवता, और 33 कोटि देवता देवी देवता का तात्पर्य क्या है? कोई कहते हैं 33 करोड़। नो 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 नो, यू गॉट इट रॉन्ग। 33 कोटि, कोटि मतलब तरीके की, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति भी पूजित होती है, हमारे यहाँ पहाड़ आदि सब, नदियां सब पूजित होती है। तो अगर हम कहते हैं कि 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता, 33 करोड़ नहीं है, और 33 करोड़ भी होते इस सनातन संस्कृति में, वो भी कम होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी अवस्था है, हम अपने भीतर परमात्मा को लेकर चलते हैं, हम उसको संभालते हैं। जब यहाँ पर हम किसी कलाकार की भांति नृत्य करते हैं, तो आप समझना वो छलक कर बाहर आ जाता है। ये अवस्था है। तो देयर इज सम डिफरेंस। एक डिफरेंस है रिलीजन्स ऑफ द ईस्ट और रिलीजन्स ऑफ द वेस्ट में। वेस्ट से जो धर्म पैदा हुए, उसमें ईसाईयत, यहूदी, इस्लाम, 3 धर्म, बुद्ध, जैन, हिंदुइज्म, ये हमारे ईस्ट के धर्म थे। इनमें ऐसा है कि जब आप परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा को पीछे से देखा गया, कौन? जिसने जगत बनाया। और यहां पर जब हम ईस्ट में परमात्मा की बात करते हैं तो वो आपकी आखिरी निष्पत्ति है। परमात्मा सदैव आगे है, उन 3 धर्मों में परमात्मा सदैव पीछे है। बना दिया इस पूरे सृष्टि और संसार को उस परमात्मा ने। हमारे यहाँ पल पल बन रहा है, हमारे जीवन से बार बार चल रहा है, वो अनावृत हो रहा है, वो उद्घाटित हो रहा है, वो आविष्कृत हो रहा है। ये एक बहुत मूल अंतर है। इसलिए हम परमात्मा को सिर्फ सृष्टा की तरह से नहीं देखते। हमारे लिए वो सिर्फ कोई एक सृष्टा नहीं है जिसने पृथ्वी बनाई और हमें सौंप दी ना, वो हमारी अंतिम निष्पत्ति है, हमारा टोटल फ्लावरिंग है। हम कब कहते हैं सहस्रार चक्र पूरी तरह से खिल जाए? और जब सहस्रार चक्र का पूरी तरह से खिल जाना है, यानी उस तत्व को, उस शिवत्व को, उस वाले आत्मबोध को, उस प्रज्ञा से भरी परम स्थिति को हम क्या कहते हैं? कि परमात्मा हो गया ये, वो तुम्हारे भीतर विद्यमान है और कुछ नहीं कह रहा।
इतने दिवस से जो चीज के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपके बीच में शेयर करूं और वो आपको पिल जाए, आप उसको लें और घोट कर पी लें। और कैसे पिएंगे, उसकी एक पीने की भी तरीका है, उसके पीने का भी एक ढंग है। तो यहां पर आज हमने एक बात आप सबसे वचन दिया था, जब आप मधुराष्टकम सुन रहे थे या जब आप कठोपनिषद सुन रहे थे, तो हमने कहा एक महाप्रसाद है, महाप्रसाद लेके जाइएगा। आज भी हम महाप्रसाद दे रहे हैं। आप समझना, एक भक्त के हृदय से जो प्रसाद हो सकता है वो खाने वाला नहीं हो सकता है। वो प्रसाद दूसरा ही अवस्था का है। वो प्रसाद ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। आपने कहीं से कोई प्रसाद लिया, खाया, पेट में हजम हो गया। आप कहीं से कुछ लाए, वो पूरा हो गया। लेकिन आज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, तो मैं एक छोटी सी, जब मैं प्रवेश करने को कहूं, तो जहां जहां जिस जिस स्थान पर सब बैठे हैं, आप उस समय अपनी बाहर की संसार को देखने वाली जो चक्षु है, उसको बंद कर लेना। इस वाणी को जितना समय दे सकते हो देना। कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, ये होने की प्रक्रिया है, ये साक्षी भाव की प्रक्रिया है। You will become a witness. Everybody asks questions when they come to me or we do workshops around. वो हमसे आके एक ही बात पूछते हैं, ये साक्षी भाव कैसे आए? शिवत्व का प्रसाद ही साक्षी भाव हो सकता है। आप किसी भी प्रकार की चर्चा करिए, लेकिन अगर आप शिवत्व को, मैं कहूं कृष्णत्व को, आपको कहूं कि आप किसी भी तत्व को, जो भी आपके इष्ट हो, वो अगर साक्षी भाव के अनुरूप आ जाए, तो अवस्था बिल्कुल भिन्न हो जाती है। जैसा मैंने कल कहा कि परत परत तुम्हारे व्यक्तित्व में है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, पत्ता गोभी इस्तेमाल करेंगे, परत परत, एक एक परत परत निकलती चली जाती है और अंदर एक और परत निकल आती है। आपका भी बिल्कुल शरीर की रचना बिल्कुल एक परत की भांति हुई है। एक एक परत को उघाड़ना, ताकि भीतर छिपे केंद्र को तुम खोज पाओ। जो आपका खोज, आपकी जो खोज है, अंतिम निष्पत्ति वाली खोज, वो भीतर बैठा वो तत्व है जिसकी सारी शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। और आप समझना, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, तब तक हम उस मार्ग के पथे हैं। आप फिर भी कह दो, किसी से हम रास्ता पूछते, कहता बस आगे ही है। आपसे मैं कहूं थोड़ा अंदर ही है, वो कह रहा अंदर जा रहा हूं, और अंदर चले जा। कहां पर? अरे मुड़ियो मत, सीधे ही जाइयो। दिस इज हाउ वी हैव बीन टॉट, दिस हैज बीन। तो अगर जो आपकी खोज है अंतर की, ये महाप्रसाद है। लेट मी टेल यू, दिस इज गोना स्टे विद यू। अगर आपने आज इसको ढंग से श्रवण किया, इफ यू हियर this exactly the technique that I'm about to share with you, this is the easiest way that you can get inside. केंद्र में हीरा छपा है, भीतर हीरा छिपा है। खोया तुमने नहीं है, तुम सोचते हो खो गया है, खोया नहीं, भीतर ही छिपा है। खो सकते भी नहीं हो, क्योंकि वह हीरा तुम ही हो। वो हीरा जो हो, वो हीरा भी तुम ही हो। और संभव नहीं है, तुम्हें लगता है गया, लेकिन जा ही नहीं सकता। हीरा भी पत्थर जैसा दिखाई पड़ने लगता है और मिट्टी से दब जाता है। तुम्हारे ऊपर भी वासनाओं की, तुम्हारे ऊपर भी इच्छाओं की, डिजायर्स की, विषाद की, मोह की, लोभ की, मोह मद की, सबकी मिट्टी जम गई है उस हीरे के ऊपर। वो जो आत्यांतिक खोज है, उसके भीतर हीरा दबा पड़ा रह गया है। अगर उसको आप अनावृत कर, अगर आप उस हीरे को बाहर निकालने की चेष्टा करो, तो करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले मिट्टी हटानी पड़ेगी। हीरा जो है, क्यों शाश्वतता का प्रतीक है? क्योंकि हजारों साल तक हीरा निज का तिज रह सकता है। हीरे में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अब खंडित हो गया वो, जब तक आप वास्तव में उसे खंडित करने की चेष्टा ना करो। लेकिन अगर आप हीरे को रहने दें, तो वो हजारों वर्षों तक, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी वो क्षीण नहीं होता, अगर वो असली है तो। जो आपके भीतर तत्व है, वो असली है। इसलिए इतना मूल्य होता है हीरे का, इसलिए आपका इतना मूल्य है।
पर आपको अपने मूल्य का पता नहीं है, क्योंकि आप मूल तक नहीं गए। मूल्य का पता भी तब पता चलता है जब आप मूल के पास पहुंच जाओ, कोई बीच में जौहरी मिल जाए, वो तुम्हें बताए क्या कंकड़ पत्थर पकड़ रखे हैं तुमने दुनिया के, क्या संसार की वस्तुओं में तुम घिरे पड़े हो, तुम्हारे भीतर हीरा है। एक आपसे छोटी सी घटना कहता हूं, और उस घटना के बाद हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। एक आदमी अपने मित्र से मिलने गया। दोनों आपस में बैठे, बड़े साल बाद मिल रहे थे। उसने घर के समाचार आदि पूछे और उसने बोला, अरे तेरी बेटी का क्या हुआ। उसने जैसे ही कहा कि तेरी बेटी का क्या हुआ, तो जो मित्र गए थे अपने दूसरे मित्र के पास, उन्होंने कहा, अरे तुझे बताया नहीं मैंने, मेरी बेटी का ब्याह हो गया, और कोई साधारण से नहीं हुआ। मेरी बेटी का ब्याह किससे हुआ कि भाई एक बहुत बड़े डॉक्टर से। तो जो व्यक्ति पहुंचा वो बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने कहा, कमाल की बात है, तेरी बेटी का पहले ब्याह इतनी कुरूप थी, वो उसका शरीर बिल्कुल ऐसा था कि क्या बताऊं, उसको भी कोई मिला तो बहुत बड़ा डॉक्टर। तो उसने कहा, हाँ भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा डॉक्टर है, हो चाहे ना हो, किसी के लिए बड़ा कि क्यों, उसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो सिर का दर्द था वो दूर कर दिया। यानी जिस आदमी ने मेरी बेटी से शादी कर ली, उसने मेरे सर का सारा दर्द दूर कर दिया। और जब कहा कि मेरा सारा दर्द दूर कर दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। अरे जो सिर का दर्द दूर कर दे वो डॉक्टर है, और जो सिर ही दूर कर दे वो मंत्र है। आई थिंक आई हैव टू रिपीट दिस। जो सिर का दर्द दूर कर दे वो डॉक्टर है, चिकित्सक है, और जो सिर ही दूर कर दे वो मंत्र है। आप सबको मंत्र मिले हुए हैं, लेकिन आपने उन मंत्रों का प्रयोग जो है वो अपने सिर को दूर करने को नहीं लिया। आप सिर को पूरे समय सिर में ही तो रह रहे हो, आप रह ही नहीं रहे कहीं और। आप शरीर के किसी कोने में नहीं रह रहे, आप सिर में ही रह रहे हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर सर दूर हो जाए, अगर मन दूर हो जाए, जितनी ऊहापोह चल रही है भीतर वो दूर हो जाए, जब तक सर है तब तक दर्द रहेगा। क्या करना है कि सर ही न रहे, मन ही न रहे, अमन हो जाए, नमन हो जाए, सुमन हो जाए, सुंदर मन हो जाए। अगर विचार खो जाए तो सिर खो जाए। तो आप समझना, हो ही कौन, यू आर जस्ट एक मूर्ति है केवल। और वो मूर्ति कैसी है, वो मूर्ति और कुछ भी नहीं है। वो मूर्ति केवल इतनी है कि जो विचारों ने उसको मिलकर बना दिया है, केवल वो। अगर विचार खो जाए तो सिर खो जाए, तब तुम रह सकोगे, लेकिन मन न रहेगा। फिर तुम रहोगे, वास्तव में तुम रहोगे। अभी तुम नहीं हो, अभी केवल मन है। और अगर मन है तो सोचो, मन को जो मार दे वो मंत्र है। मन की जिससे मृत्यु घटित हो जाए वो मंत्र है। मन जब नहीं रह जाता, तुम्हारे और शरीर के बीच जो सेतु है वो टूट जाता है। मन ही जोड़े हुए है तुम्हारे शरीर से। अगर बीच का सेतु, बीच का संबंध टूट जाए, आप समझना, जो सेतु टूट जाए तो वो अलग और तुम अलग। क्या चाहिए? मजा इस बात का है कि हमारे पास कोई ऐसी कुंजी हो, ये अलग अलग हो जाए। हमने हमेशा आपसे कहा, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। देखो आपको एक बात बताऊं, रत्ती भर भी कोई जानकारी नहीं है मुझे। कैसी जानकारी कि कोई कहे कि शास्त्र पढ़े होंगे। हाँ, इशारे लिए हैं, और उसके बाद बैठकर अपनी कलम चलाई है अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर जो लिखा हुआ था उसको अपनी कलम से लिखा, अपनी वाली कलम से, स्याही वाली कलम से नहीं। जब आप अपनी कलम इस्तेमाल करते हो तो उद्घाटित होता है। वो उद्घाटित होना ही उसका आविष्कृत होना है, वो परमात्मा का प्राकट्य होना है। तो इसलिए मंत्र क्या है ये समझना है। जिससे ही सिर खो जाए, जो सर को खोने में उपयोग करे, वो मंत्र है। और ये जो परतें हैं शरीर की, मन की, इनको काटने की विधि है। देयर इज अ वे हाउ यू हैव टू कट दिस। एक एक कदम बढ़ाना जरूरी है, धैर्य रखना होगा,
क्योंकि मंत्र बहुत धीरज का प्रयोग है। मैंने देखा हमारे पास लोग आते हैं जब उनकी दीक्षा होती है और जब वो हमारे पास पहुंचते हैं तो बहुत जल्दी होती है मंत्र। और मैं कहता हूं मंत्र बहुत संभाल कर रखना, ये इतना अद्भुत है, इसमें धैर्य रखना, पेशेंस रखना। और आपको एक बात बताऊं, आपको हल्का सा कोई बता दे मंत्र मिल जाए तो तेरे जीवन ऐसा हो जाएगा, लेकिन ना, आप जरा ध्यान रखना, धीरे धीरे उसके साथ धैर्य बढ़ाना, पेशेंस रखना, बच्चे जैसे कदम रखना मंत्र के साथ और धीरे धीरे बढ़ना। जिसके मन में बहुत ज्यादा है उन्हें मंत्र से लाभ ना होगा। जिसको अधैर्य है, हो सकता है बीमार पड़ जाए, हो सकता है मंत्र उल्टा प्रयोग हो जाए उसके जीवन में। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है, धैर्य रखना। और जब आपने धैर्य रखा, आप समझना, एक व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके हाथ में क्या आ गया जब उसे मंत्र मिला। मंत्र भी किससे लेना? मंत्र भी उससे लेना जिसने मंत्र, खुद को मंत्र स्वरूप बना लिया। एक खिलौने की दुकान पर गए थे, तो वहां पर गए, एक खिलौना था, उसके ऊपर लिखा था अनब्रेकेबल। मैं अपने मित्र के पास जा रहा था अहमदाबाद में, तो मैंने सोचा भाई ये खिलौना है अनब्रेकेबल, और मेरा दोस्त बार बार कहता है मेरा बेटा कोई खिलौना ही नहीं छोड़ता, तो मुझे लगा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा अगर उससे कहूंगा कि मैं अनब्रेकेबल खिलौना तुम्हारे लिए ले आया हूं। तो जैसे ही हमने कहा कि अनब्रेकेबल खिलौना हम आपके लिए ले आए, घर में रखा, पत्नी भी खुश, पति भी बहुत खुश, हमारा मित्र बहुत खुश, उन्होंने अपने बच्चे को दिया। बच्चे ने पूरी कसरत कर डाली, लेकिन वो खिलौना नहीं टूटा। और फिर हम चले आए। उसके बाद जब बंबई जाके वापस अहमदाबाद आ रहे थे, तो हमने जाकर उससे बोला, और भाई, तो दोनों पति पत्नी सर पर हाथ रख के बैठे थे। उन्होंने कहा खिलौना तो नहीं टूटा, लेकिन खिलौने से देखो सारे शोपीस, सारे वास, सारे कांच सब तोड़ दिए। तो आप समझ लेना मंत्र का प्रयोग कैसा है। उसके बाद आपको कुछ नहीं हो सकता। वह खिलौनों का जब कोई व्यक्ति अपने मंत्र का अस्त्र शस्त्र की तरह से प्रयोग करता है, तो यानी वो समझ नहीं पाया कि उसे क्या प्राप्त हो रखा है। तो मंत्र में धैर्य रखना। तुम वैसे ही विक्षिप्त दिशा में हो, और जब आपकी जो विक्षिप्त दिशा है, उस दिशा में मंत्र से विक्षिप्तता टूट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को प्रयोग करना नहीं आए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर, जिसके जीवन में समर्पण आ जाएगा, उसकी भाषा, उसकी शैली बदल जाएगी। और तुम कहते हो, जिनको तुम साधारणतः धार्मिक आदमी कहते हो, वे साधारण सांसारिक आदमी से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि सांसारी को तो संसार की परेशानी है, और जो सो कॉल्ड रिलीजियस आदमी है, वो अपने संसार की परेशानियों में धर्म की परेशानी और जोड़ लेता है, यानी प्लस हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। तो मंत्र के साथ अत्यंत धैर्य, अन्यथा उस झंझट में पड़ना ही मत, लेना ही मत। एक छोटी सी बीच, बिकॉज मंत्र इज कमिंग टू ऑफन इन द कन्वर्सेशन टुडे। माइक पर मंत्र ले लो, जो मन पसंद आए वो मंत्र ले लो, ऐसे मंत्र नहीं लिया जाता। वो मंत्र जो आप करें वो आपको प्राप्त होना चाहिए, और जब वो प्राप्त होता है तो उसकी बात अलग हो जाती है, उसमें एक शक्ति संपात होता है। वो शक्ति संपात आपके भीतर उसकी पुनरक्ति से होती है। हमारे पास कोई जब दीक्षा लेता है तो हम उससे कहते हैं, सुन रहे हैं यहाँ बहुत सारे जो वैष्णव यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, उनको पता है कि हमने कहा जब ले ली दीक्षा तो अब बात तब करना जब 1 करोड़ बार मंत्र हो। जब 1 करोड़ बार हो जाए तब थोड़ा चैतन्य होने लगेगा, थोड़ी धैर्यता रखनी पड़ेगी। तो इसलिए सोचने की बात है, एक आदमी जा रहा था रास्ते से, और सबसे बड़ी बात है कि जब वो आदमी रास्ते से जा रहा था तो जूता उसको काट रहा था। ये जूता उसे काटे, वो बार बार अपने जूते की तरफ देखे, चल रहा था, काट रहा था। ऐसा है, सबसे बड़ी बात है कि हम हर चीज को थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एक टेक्निक में प्रवेश कराने ले जा रहा हूं। आप अपने मंत्र को जल्दी तोड़ लेते हो, उसे थोड़ा पकने दो, उस मंत्र को
थोड़ा पकने दो। तो जो मैं बता रहा था कि ये आदमी रास्ते पे जा रहा था, जूता काट रहा था, जूता छोटा था, तो जूते को गालियां दे रहा था और किसी को गाली नहीं दे रहा था, जूते को गालियां दे रहा था, परेशान था। उसके पास में एक आदमी चल रहा था, उसने कहा भाई साहब क्या हुआ, जूता बहुत तंग है क्या, बहुत वैसा है क्या, बहुत टाइट हो रहा है आपके, आपने आपने कहां से खरीदा। वह आदमी वैसे ही जला भुना था, उसके पैर वैसे ही उसे पीड़ित कर रहे थे, परेशान हो रहा था, क्रोध में था। उसने कहा जूता कहां से खरीदा, उसने कहा झाड़ से तोड़ा है। होती है ना बातचीत, कभी कभी आप ऐसे ही हर एक के काम में उंगली घुसा देते हो। उसने कहा भाई मैंने झाड़ से तोड़ा है। तो उसने कहा अच्छा, तो भैया थोड़ी देर रुक जाते, उसे पकने देते, जब तुम्हारे साइज का हो जाता तो तोड़ लेते। तो हम आपसे मंत्र के विषय में भी यही बात कह रहे हैं कि आप अपने मंत्र को जल्दी मत तोड़ना, मंत्र कच्चा मत तोड़ना, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे। जूते को तो कोई फेंक भी देगा, मंत्र फेंकेगा भी नहीं, मंत्र फिर आप फेंक भी नहीं पाओगे, क्योंकि जूता बाहर है, मंत्र भीतर है। और अगर गलती से मंत्र में फंस गए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। बहुत से धार्मिक लोग पागल हैं, उसका कारण है मंत्र में फंस गए, कुछ जल्दी हो जाता है, और जब फल पका नहीं था कच्चा ले गए। आप इसको पका लेना, जब पक जाएगा तो ये तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति करा देगा। आज हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, और वो प्रयोग क्या है आपको बताऊं। आनंद इस बात का होता कि तुम सब सामने इसी में बैठे होते हमारे इस हॉल में, और एक एक को देख पा रहा होता मैं उस समय। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तुम जहां जहां बैठे हो वहां से ट्रांसपोर्ट करना है मुझे तुम्हें। आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर प्लेस। आई थिंक लेट्स गेट इनटू इट। पहली परत है शरीर की, पहली परत आपकी है शरीर की। तो मंत्र का पहला प्रयोग शरीर से शुरू होता है। मंत्र का पहला प्रयोग, मंत्र का पहला प्रयोग शरीर से शुरू होता है और कहीं से शुरू नहीं होता, क्योंकि वहीं तुम हो, वहीं से इलाज शुरू होगा। अगर तुमने परत छोड़कर मंत्र का इलाज शुरू कर दिया तो बीमारी रह जाएगी, मिटेगी नहीं। सबकी सबसे बड़ी समस्या शरीर है, और उसकी सबसे पहले इलाज करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, यात्रा वहीं से शुरू हो सकती है जहां से तुम खड़े हो। तुम खड़े कहाँ हो? शरीर खड़ा है, तुम खड़े हो क्योंकि तुमने आइडेंटिफाई उसके साथ कर रखा है। तुम अभी शरीर हो, तो अभी मंत्र को शरीर से शुरू करना होगा। मंत्र कहाँ से शुरू होगा? शरीर से। विधि को समझ लो, 10 मिनट शांत बैठ जाना। दिस इज द टेक्निक। एक छोटी सी बात है, मैं आपसे शांत बैठने को बोल रहा हूं। मेरे पास प्रश्न आए, किसी ने कहा शांत कैसे बैठे? नहीं बैठा जाता। कोशिश कर रही हूं, सब कुछ कोशिश की, लेकिन फिर भी शांत नहीं बैठा जा रहा। क्या करूं? तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, 10 मिनट पहले शांत बैठ जाना। शांत बैठने से पहले, क्योंकि शांत बैठना आसान नहीं है, 5 मिनट जैसे ही आप शांत बैठना चाहो उससे थोड़ी देर पहले थोड़ा नाच लेना, थोड़ा उठ लेना, थोड़ा हाथ पैर हिला लेना। जहां जहां तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दबाव बनता है, उस सारे दबाव को थोड़ा लचीला बना लेना। तुम थोड़ा कोशिश कर, थोड़ा तुम अपने शरीर की तरफ, क्योंकि तुम्हारे शरीर की परत को हटाना है मुझे। ये शिवत्व का महाप्रसाद है। और आपसे कहूं कि अगर आप इस समय कुछ और न ध्यान में आए, देखो परत का मतलब है एक परत खोली तो सारा ध्यान उस परत को खोलने पे लगा दिया। आपसे मेरी विनती है आज के दिवस, जो आपसे कह रहा हूं, अगर परम शांति बैठना चाहते हो, शरीर की तरफ से सारा आकर्षण तुम्हें छोड़ना है और मैं कहूं शांत बैठना है, तो शांत से पहले कि उस 10 मिनट तुम्हें परम शांति अनुभव हो, थोड़े अपने शरीर में जितनी भी तुम्हें मूवमेंट करनी हो वो एक बार कर लेना। थोड़ा नाचना, गाना, थोड़ा उछलना, थोड़ा कूदना, और दिल खोलकर उछलना कूदना। कोई ऐसे नहीं मरे मरे। हम किसी से कह दें नाचो तो भैया वो कैसे नाच रहा है कि मरे मरे नाच रहा है।
और मैं आपसे कहूं ये आपके लिए है, ये किसी के लिए दिखाने को नहीं। आप नाचना और नाचने के बाद 10 मिनट वास्तव में पाओगे, शरीर की ऊर्जा थोड़ी बह जाएगी, थोड़े प्रेशर्स निकल जाएंगे, तो तुम शांति से बैठ पाओगे। और जैसे ही तुम शांति से बैठ पाओगे, शांति से बैठने के लिए रेचन बड़ा जरूरी है। 10-5 मिनट तुम्हें ठीक लगे, जितनी तुम्हारी बेचैनी हो उस हिसाब से नाचना। कभी किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कभी किसी की इंटेंसिटी कम होती है, तुम इस हिसाब से नाचना, कूदना। और जिस समय तुम नाचकर हल्के से थक जाओ, तुम्हें लगे कि बस अब और नहीं, उस समय शांत बैठ जाओ। तुम इतना शांत बैठ पाओगे कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कैसे बैठे शांत, शरीर में बैठने का तरीका ऐसा है। और फिर बैठ जाना, नाचना, बैठ जाना। 10 मिनट अब शरीर हिले नहीं, आंख आधी खुली रखना। यस, शरीर को सारी व्यवस्था करना और अपनी आंख आधी खुली रखना। देखो, आप करके देखना, आप मेरे को सुनो मत, आप करो, क्योंकि नहीं तो बार बार आपको YouTube चैनल पर जाना पड़ेगा। आप जब नाच लो, कूद लो, उछल लो, शांत बैठ जाना। और शांत बैठकर जब अपनी शांत मुद्रा में, सुख आसन में, किसी में भी बैठो, उसमें बैठने के बाद आंख को आधी बंद रखना, आधी बंद। और उचित होगा हाफ आईज ओपन। जिस कमरे में बैठो, जब ये प्रयोग करो तो कमरा छोटा हो, कमरा बहुत छोटा हो, ऊपर से अगर गोल हो तो और अच्छा, लेकिन न हो, चौकोर हो, उसमें जब बैठो तो बिल्कुल कमरा छोटा हो, आधी आंख खुली हो। और सब बड़ी बात है कि वो जो कक्ष हो वो कक्ष खाली हो। एक सबसे बड़ी बात है कि वो कक्ष खाली होना चाहिए। इसलिए जहां पर भी कोई सोचता है कि मंदिर में या चर्च में या गुरुद्वारे में जहां कुछ भी ना हो, कहीं कोई सामान ना हो, या घर का कोई एक ऐसा साफ कर लो कोना कि उस कोने में बैठो, पूरी तरह से वो एकांत हो, उसमें कुछ ना हो, कोई देवी देवता की तस्वीरें, फोटो भी ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे आजकल के पूजा के कमरे कैसे हैं कि जितने कहीं चित्र कहीं से भी मिले आपको, आपने सब लगा दिए। पूरी की पूरी गवर्नमेंट बैठा दिए आपने अपने पूजा के कमरे। हमने तो देखा भाई, मंदिर के ड्रॉरों में भी भगवान, मतलब रसोई के ड्रॉर में भी भगवान है। शिव जी ने अपना त्रिशूल पकड़ रखा है। अब समझना, हल्के से मुड़ना भी चाहें तो शिव जी बिल्कुल हिल नहीं सकते। क्यों? पीछे जो बैठे हैं दूसरे देवता कहेंगे, अरे शिव जी जरा संभल के, आपका कहीं त्रिशूल हमारे नहीं गड़ जाए। शांत, खाली करना, आंख आधी खुली रखना। अब मन ऐसा पागल है कि अगर लोगों के आप पूजा गृह आज की तारीख में देख लो तो आपको उनके मन का पता चल जाए। जब मन क्लस्टर्ड भरा पड़ा है तो सबके पूजा में भी क्लस्टर भरा पड़ा है। वो क्लस्टर का है, वो मन का क्लस्टर है, वो आपके हर जगह दिखता है। जिसके मन में क्लस्टर नहीं है तो सब खुला खुला दिखेगा। ये विशेषता है। और इसको सबसे बड़ी बात है, इसमें से एक भी व्यक्ति पूरी पूजा करने के बाद भी तृप्त नहीं होता। एक को तृप्त करने से सब तृप्त हो जाते हैं। आप समझो किसको हमारे यहाँ कहा जाता है, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साधने की आवश्यकता है, वो एक सद जाए, सब तृप्त हो जाते हैं। लेकिन वो एक ऐसा सद जाए कि उस एक में आपको समस्त परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो इसलिए कमरा खाली, कमरे खाली का मतलब है शून्यता का प्रतीक। खाली कमरा शून्यता का प्रतीक है, छोटा हो, क्योंकि मंत्र में उसका प्रयोग करना है। हमारे बेडरूम्स, हमारे सिटिंग रूम्स, हमारे लाउंजेस, हमारी लॉबीज सब बन जाती हैं घर में। लेकिन आप बताना, इतने मॉडर्न लोग हो आप अंदर भीतर जाना चाहते हो। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनके घर में मेडिटेशन रूम्स होंगे। एक छोटा कमरा केवल आपके लिए, खाली, केवल आपके लिए, शून्यता का प्रतीक। और जब वो खाली हो जाए, खाली हो, उसका भी उपयोग, आधी आंख खुली रखना। ये ना हो कि मैं ये छोड़ जाऊं, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को रखा कि अगर आंख खाली, आधी खुली हो आंख, तो आधी खुली आंख का क्या मतलब है? क्योंकि जब आंख
पूरी खुली होती है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो मकान के। पूरी आंख खुली है तो तुम दरवाजे पर खड़े हो, पीठ मकान की तरफ है और मुंह संसार की तरफ। पीठ तुम्हारी मकान अपने घर की तरफ है जब आंख पूरी खुली होती है, और पूरा मुंह संसार की तरफ है। एकदम से पीठ न मुड़ेगी, एकदम से परिवर्तन आसान नहीं होगा। पूरी आंखें खुली होंगी तो तुम सिर्फ आधी आंख खोलना, आधा संसार की तरफ बंद और अपनी तरफ खुली। आधी आंख खुले होने से अर्थ है आधा संसार देख रहे हो और आधा अपने आप को देख रहे हो। शिव की जो आंखें हैं वो आधी खुली नेत्र हैं, आधी से संसार दिखा, आधी से खुद को देखा। तो बिल्कुल शांत बैठ जाओ उस कक्ष के अंदर, और उस कक्ष के अंदर शांत बैठने के पश्चात आप बिल्कुल खूब नाच कूद करके शरीर को बिल्कुल थका कर जब आप बैठे, आपकी दोनों अधखुली नेत्र कहाँ देखनी है कि उन दोनों को एक ही स्थान दिखना चाहिए। आधी खुली जब आंख हो तो अवस्था कैसी हो जाती है, जैसे तंद्रा जैसी। अगर आप मेरे बोलने के साथ साथ इसको कर पाओ और आप समझना, आधी आंख खुली का मतलब है तंद्रा जैसी स्थिति की अनुभव। और उस दोनों आंखों का जो छोर है, वो दोनों आंख कहाँ देख रही हैं कि नासिका के अग्रभाग को, नासिका के शीर्ष भाग को देख रही है। बस उतनी ही आंख खुलनी चाहिए। एकाग्रता कैसी हो कि दोनों आंखें केवल नाक के आगे के अग्रभाग को देख रही। शांत भाव से नाक का अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है, नासाग्र दिखाई पड़ रहा है, तब ओम का पाठ शुरू करना। और तब ऐसा ओम का पाठ शुरू करना शरीर से, क्योंकि शरीर में तुम हो, शरीर से तुम हो। इस समय सारी ऊर्जा का, सारे उद्योग का कैसे बैठना है कि छोटा कमरा, खाली कमरा, एम्प्टी, शून्यता का प्रतीक। आंख आधी खुली हुई, आंख आधी खुली हुई, दोनों आंखों का केंद्र नासिका के टिप पर। और उस टिप के बाद जब शरीरस्थ बैठ जाओ, शरीरस्थ, अभी आत्मस्थ नहीं बोला मैंने, शरीरस्थ बैठ जाओ और एकदम ओम का नाद प्रारंभ करना है। और ओम का नाद भी ऐसे नहीं जैसे कोई तुम्हें सहला रहा हो या तुम उसको सहला रहे हो। उस समय पर जब तुम शरीर से, क्योंकि तुम शरीर हो, तो जोर से ओम की ध्वनि करना कि कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट कर आ जाए। इतनी जोर से पूरा शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करना। इसलिए बोला कि खाली कमरा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तुम ओम का नाद करो, जब ओम तुम्हारे मुंह से निकले, तुम में कितनी शक्ति है तुम्हें पता चल जाए। जब तुम किसी से लड़ते हो, बातचीत करते हो, कितना सामर्थ्य होता है। आज तुम उस सारे सामर्थ्य के, सारे ओम के उच्चारण को यहाँ, सारे शरीर की शक्ति को यहाँ लगा दो और जोर से ओम का उच्चारण करो, इतनी तीव्र गति से कि वो जो साउंड है वो दीवारों से बाउंस कर कर वापस आ जाए, वो बाउंस कर कर आए। इसलिए अगर तुम देखते हो कि और बड़े बड़े कैथीड्रल्स बने हुए हैं बाहर, वो उस तरीके से बने कि जब उसमें कोई मंत्र बोला जाए तो चारों तरफ से मंत्र की ध्वनि दीवारों पर पहुंचकर टकरा कर अंदर आए और तुम्हारे ऊपर पड़े। इसलिए कहा गया कि हमारे मंदिरों में जो ऊपर गोलाकार अवस्था बनती थी, ऊपर से उनकी छतरी बनती थी, वो इसलिए बनती थी कि इसके भीतर जब कोई नाद होगा, कोई मंत्र का उच्चारण होगा, तो मंत्र चारों दीवारों पर जाएगा और लौट कर आकर गिरेगा। तो तुम बैठ जाना, जोर से ओंकार कर, इतनी तीव्र गति से कि ओम ओम जितनी जोर से हो सके, क्योंकि शरीर का उपयोग करना, तुम्हारा पूरा शरीर निमज्जित हो जाए। देखो, हमने आत्म निमज्जित की बात करी थी, या शरीर को निमज्जित करने की बात है मंत्र में। आपका पूरा शरीर वो निमज्जित हो जाए, ओम में ऐसा लगने लगे कि तुम अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को तुमने ओम पे लगा दिया। और तुम समझना, जिसने इस ओम पर लगा दिया, उसके बाद तुम बात करना, तुम इतनी शांति से बात करोगे,
जब तुम इससे उठकर निकलोगे, जब इस तुम ध्यान की प्रक्रिया से बाहर आओगे, इस सामने वाला कहेगा ये कोई नया व्यक्ति है, या कोई आपका अपने घर में बेटा, पुत्र, पति बोलेगा कि अरे इसकी भाषा इतनी इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई। अरे अपने शरीर की सारी ऊर्जा को ओम में ठूंस दो, ओम में भर दो उसको, और एक बार वो तुमने भरा तो ऐसा कि आधे आधे से हल ना होगा, पूरा अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति है तुम इस पर, और जैसे इस पर निर्भर हो तुम्हारा सब कुछ। जब तुम कहते हो कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस, डू इट। तुमने पूरी की ओम की तरह तो तुम बचोगे, अन्यथा मर जाओगे। इसलिए पूर्ण रूपेण जब जिंदगी और मौत का सवाल आ जाए और जिंदगी के स्रोत तक बहने की बात आ जाए, तो फिर कैसे जाना, दाव पर लगा देना। जैसे कोई सिंहनाद करता है, जैसे कोई शेर गरजता है, आधी आंख खुली आधी बंद, जोर से ओम का पाठ ध्यान करना। जैसे कोई पत्थर फेंकता है, शांत झील में लहरें उठती हैं, चारों तरफ चली जाती हैं, ऐसा तब ओम कहोगे। तुमने जैसे एक पत्थर फेंक दिया, तुमने उस परम शांत शून्यता में एक पत्थर फेंका भीतर, और ये ओम की ध्वनि तुम्हारे चारों तरफ घिरने लगी है। छोटा सा कक्ष है, आपको बताऊं कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहां गंभीरा में पहुंच जाओ, और गंभीरा में पहुंचकर जहां श्री चैतन्य महाप्रभु रखते थे, उनका जहां पर चरण पादुका है, उसी के समक्ष एक ऐसा स्थान छोटा सा जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठ पाए, वहां मंत्र प्रयोग का स्थान है कि आपको मंत्र स्नान करा दे, तुम मंत्र में नहा लो, और इतनी जल्दी ओम कहना कि ओवरलैपिंग हो जाए। आप बात करते हो, कितनी जल्दी करते हो। आप ओम का उच्चारण ऐसे करना जैसे एक के ऊपर एक चढ़ने को तत्पर हो, दूसरा मंत्र का उच्चार हो तो तीसरा चौथा तैयार हो। ओम ओम, दो ओम के बीच में जगह मत छोड़ना, पसीना पसीना हो जाना, सारी ताकत लगा देना, कोई वस्त्र भीग जाए भीग जाने देना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सवाल है, तुम्हारे उस तत्व का सवाल है, तुम्हारे बोध का, तुम्हारे प्रज्ञा का सवाल। पूरी जान लगा देना उस समय, और इतनी जान के साथ अगर तुम कोई गोल कक्ष खोज पाओ तो और आसान होगा, नहीं तो बनवा लेना। एक हल्की सी प्रतीति हो जाए तो तुम में से कोई रह ना पाएगा। तुम्हें ये स्नान करने की जरूरत होगी, तुम्हारे जल का स्नान बेकार हो जाएगा, तुम्हारे इत्र फुलेल का स्नान बेकार हो जाएगा जिस दिन तुमने ओम के मंत्र में स्नान कर लिया। यह विशेष अवस्था है, ये ध्वनि जो है तुम पर बरसने लगे। अरे ये जगत, ये शाश्वत, ये सनातन धर्म में जो आखिरी निष्पत्ति है, जितना हम अंदर जा सकते हैं, हमारे भीतर जो व्याप्त है वो ध्वनि क्या है, अनाहत नाद क्या है। अगर सोचो उसके उच्चारण से वो तुम्हें बाहर से भी स्नान करा रहा है, भीतर से भी स्नान करा रहा है, तो वो स्नान कैसा हो। अभी इस पर थोड़े लोगों ने बहुत सारी तैयारियां करी, सबने कहा स्नान कैसा होगा। एक जगह पर श्री रविशंकर जो सितार बजाते थे, उनसे कहा गया जरा प्रयोग करिए, और जब प्रयोग किया गया तो बीज डाले गए, सितार बज रहा था। बजते 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 जब उसमें से कोपल फूटी, जो 3 महीने का समय था, मात्र 1.5 महीने में कोपल फूट गई, और जिस तरफ वो झुकी उस तरफ झुकी हुई थी, वो बड़े भी होने लगे तो उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से सितार की ध्वनि आ रही थी। ये ध्वनि तुम्हारे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती, ये ध्वनि तुम्हें अपनी ओर खींच लेती। जब चारों तरफ से ओंकार बहने लगे, बरसने लगे, लौटने लगे, जाने लगे, तुम्हारी ध्वनि वर्तुलाकार हो जाए, तुम पाओगे शरीर के रोए रोए प्रसन्न हो रहा है, रोआ रोए में से रोग झड़ रहा है, तुम्हारी जितनी पीड़ा है, विक्षिप्तता है, विषाद है, वो सब बह रहा है, शांत स्वास्थ्य प्रगाढ़ हो रहा है। तुम हैरान हो जाओगे, तुम्हारे शरीर की बहुत सी तकलीफें जो हैं अपने आप खो गई, क्योंकि ये बड़ा गहरा स्नान है, इससे अच्छा स्नान और हो ही नहीं सकता जो बाहर शरीर कर सकता है। ध्यान आत्मा का स्नान है, ये ओम का उच्चारण, मंत्र का स्नान जो है, ये साक्षात अद्भुत विलक्षण स्नान है। 10 मिनट ओम का उच्चार जोर से शरीर के माध्यम से, इतने विलक्षण माध्यम से, फिर आंख बंद कर लेना, होठ बंद कर लेना, और जीभ तालू से लगा लेना। 10 मिनट के बाद इतना जोर से कहने के पश्चात अपने होठ बंद, अपनी ध्वनि बंद,
अपनी जीभ, क्योंकि जीभ ही सबसे ज्यादा लपलपाती है। ये लूली कहते हैं जीभ को, जीभ को ऊपर के तलवे के साथ चिपका देना, मुंह बंद, बिल्कुल बंद, कोई जगह ना बची, क्योंकि अब जीभ का उपयोग नहीं करना, शरीर का उपयोग हो गया। आपने कहा इन परतों के अंदर कैसे जाऊं? शिव ने कहा आ जाओ, हम तुम्हें बताते हैं कि इन परतों के अंदर कैसे जाओ। तुमने अभी शरीर का प्रयोग किया, तुमसे कहा बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, आंख बंद कर ले, अभी आधी खुली थी, अब कह दिया आंख बंद कर ले, जीभ को भी तालू से लगा दे, जीभ को नीचे रखोगे तो जीभ कुछ भी चलाएगी, जीभ को तालू से रख ले, चिपका ले ऊपर। और उसके पश्चात क्या करना है? दूसरा कदम, 10 मिनट अब ओम का उच्चार भीतर मन में। जितनी ऊर्जा तुमने अपने शरीर के साथ लगाई, उतनी ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे मन के साथ लगानी है। और उच्चारण केवल किसके साथ? कि उच्चारण जो है वो केवल और केवल तुम्हें करना है अपने मन के साथ, मन का उच्चारण। अभी तक वो जो कक्ष था, वो कक्ष तुम्हारे लिए बना हुआ था, वो एक कमरा था। मन के लिए शरीर कमरा है, इस मन के लिए शरीर कमरा है। और जब इस कमरे में दूसरे 10 मिनट में अब तुम अपने भीतर मन में गूंजना, मन में गुंजारण करना, मन के अंदर उस ध्वनि को प्रस्फुटित करना, होठ जीभ कंठ का कोई उपयोग नहीं करना, सिर्फ मन, केवल मन में ओम ओम, लेकिन गति वही रखना, तीव्रता रखना। जैसे तुमने अपने शरीर को पूरी तरीके से खपा दिया, उस तरीके से अपने मन को खपा देना। जैसे तुमने कमरे को भर लिया था, ऐसे अब अपने शरीर को भर लेना, क्योंकि अब शरीर मन का कमरा है, बिल्कुल बंद है, उसको भर लेना और ओंकार से भर लेना कि शरीर के भीतर कंपन होने लगे, एक अद्भुत वाइब्रेशन होने लगे। वो झंकार से तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन जो है, ऐसा ओम करना जितनी तेजी से तुम कर सकते हो। 2 ओम के बीच में थोड़ी सी भी जगह न रहे, थोड़ी सी भी स्थान न रहे, ओवरलैपिंग हो जाए। अगर तुमने इतनी जोर से ओम का गुंजाय किया तो 2 ओम के बीच में जरा सी भी संधि न रह जाए, जरा सा भी गैप न रह जाए, जरा सा भी विचार ना आ जाए। उसी संधि में जगह को बना लेना, संधि तोड़ना नहीं, संधि शून्य उच्चार है, इसकी फिक्र ना करना, एक ओम दूसरे पर चढ़ा लेना, ओवरलैपिंग करते चले जाना। और ध्यान रखना, शरीर का उपयोग नहीं करना इसमें, इसलिए आंख को बंद कर ली, शरीर स्थिर है, मन में गूंज करनी है, मन में गूंज करते 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 जाना। आप पाओगे जहां पर 10 मिनट बीते, ये वचन है मेरा, दूसरी परत पिघल जाएगी। ये मन का, ये मंत्र का प्रयोग है। दूसरी परत मन की पिघल जाएगी, और जब दूसरी पिघल जाए तो अब तुम क्या करना? तीसरे तल पर आ जाना। जब आप तीसरे तल पर आओगे, 10 मिनट गुंजान, 10 मिनट तक आपने शरीर को दिए, 10 मिनट आपने मन को दिए। अब क्या करना है? अब गर्दन झुका ले। अब जिसको तुमने अकड़ कर पकड़ रखा है ना, उस अकड़ को तुम झुका देना, उस अकड़ को बहने देना, उस अकड़ को गिरने देना। जब वो हुएगी तो ये जो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी ठोड़ी का जो हिस्सा है, जहां दाढ़ी निकलती है, यहाँ बकरे की भी दाढ़ी होती है। बकरा क्या कहता है? मैं। लेकिन जब तक गर्दन ऊपर रहती है तब तक मैं है। जैसे ही समर्पित होती है उसके बाद वो हो जाता है, केवल वो प्रकट हो जाता है। तो आपने जैसे ही इसको झुकाया, गर्दन झुकाई, फिर फिक्र मत करना। फिर उस समय पर 2-4 दिन आपको थोड़ी तकलीफ होगी गर्दन में, क्योंकि एकदम अकड़ी हुई गर्दन को थोड़ा ढीला छोड़ोगे। दाढ़ी छूने लगे शरीर को, थोड़ी छूने लगे, उतनी घुसाते चले जाना कि अपनी गर्दन को। और अब तुम मन में भी गुंजार मत करना ओम का, मन के गुंजारण को भी शांत कर देना, क्योंकि मन के बाहर तभी जा सकोगे जब कर्ता छूट जाएगा। अब तुम साक्षी हो जाना। जैसे ही तुमने गर्दन को झुकाया तो क्या कहते हैं? दिल के आईने में तस्वीरें यार। ये भी तुम्हें लगता था ज्ञान की चर्चा है, तुम्हें लगता था वैराग्य की चर्चा है,
लेकिन अब मैं बताऊं, ये भी मेरे हृदय की चर्चा है। ये राधा रमन का घंटनाद था, प्रारंभ के दिवस पर घंटनाद हो रहा है, और ये घंटनाद जो है इस समर्पण का प्रतीक है। ये कथा भी मैंने इसलिए सुनाई, शिव तत्व भी इसलिए सुनाया, क्योंकि वो भी श्रावण के मास में राधा रमन जी का प्रसाद था। आपने जैसे ही गर्दन मोड़ी तो दिल के आईने में तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई और देख लिया। अगर तुम्हें उसको देखना है जो भीतर छिपा है, तो इस अकड़ को जरा ढीली करना, गर्दन झुकाना जरूरी है। जैसे गर्दन झुकती है, दिल का आईना सामने आ जाता है, दिल का आईना आता है और उस परम प्रिय की तस्वीर वहां है। जब वो परम प्रिय दिखता है, उसको साक्षी भाव कहते हैं। ये साक्षी भाव ही, ये शिवत्व ही, इस अवस्था तक पहुंचना। आपने जो भी कुछ किया, आपका आप तन जाते हो। अगर तुम परमात्मा खो रहा है, सिर्फ अकड़ की वजह से तुम विद्यमान हो। अगर तुम अकड़ को छोड़ दो तो तुम समर्पित हो। ये साक्षी भाव की अवस्था में आकर अपने आप को गर्दन लटका कर आपने छोड़ा, उस समय पर टोटल सरेंडर है। और टोटल सरेंडर ही शिवत्व है। जिस समय आप देते हैं, टोटल सरेंडर के समय पर ही बीज पिघल जाता है, वृक्ष निकलना प्रारंभ हो जाता है। यही शिवत्व है, यही शिव तत्व है। आप सबको प्रणाम। आप सब ने बहुत समय दिया हमें। मैं आप सबको हृदय से, कोई त्रुटि कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। एक थैंक्स गिविंग्स वोट है जो कुछ लोगों को, देखिए ऐसा है, मैं सबसे आखिरी में हूँ, सबसे पीछे इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर कहते हैं ना कि हमारे निकेत जी न हो तो हम जितने मजे से बैठकर सुन रहे हैं, मैंने सारा भारी उनके ऊपर छोड़ दिया। ये आ रहे हैं, आप संभालो, ये कर रहे हैं, आप संभालो। बिल्कुल उन्होंने और मुकुल जी ने मिलकर इतने सुंदर तरीके से इस पूरे 90 डेज की यात्रा को निकलवाया है। कठोपनिषद, मधुराष्टकम और अब शिव तत्व। अगली यात्रा मीरा की होगी, बिल्कुल होगी। थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा अपने दोनों लालन के संग थोड़ा समय निकालूं, माता पिता के संग आनंद लऊं। और तीसरी बात आपको बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता इस यात्रा पर मुझे घुसाया किसने। हमारी स्नेह जी ने घुसाया, वंदना जी ने घुसाया। लेकिन एक और राज की बात कहनी है, पता नहीं वो यहाँ है आज की नहीं है, कि बन कुछ और भी कर रहा था बोलने का, उनका नाम आज तक कभी आया नहीं। मुझसे चित्रा जी ने कहा, हमारे संग पिछले वर्ष 2 साल पहले कैलाश गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी एक छोटी सी विनती है, स्वीकार करें, शिव तत्व सुनाई। अब मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे इतने शिव के परम प्रिय भक्त मौजूद होंगे, तो मैं चित्रा जी को भी स्मरण करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, कुछ भी सब छोड़ दीजिए, शिव तत्व सुनाइए। इसलिए आप सबको नमन करता हूँ। एक और आपसे बात कहता हूँ, ये YouTube चैनल पर सब कुछ मौजूद है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ है उसके प्रोसेसेस, सो दैट हम और उसे ढंग से मैनेज कर पाएं। और ये सारे टॉक्स वहाँ अवेलेबल हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एज इट इज रहने वाला है, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे कल से, क्योंकि बीच में हम 2-4 घंटे, आज 24 घंटे चालू रखेंगे। क्या आपके पास टाइम है? आप खूब अपने मजे से हमारी गलतियां हमसे शेयर करें, प्रशंसा ना करें, गलतियां शेयर करें, हमने क्या छोड़ा, हमसे क्या रह गया। आप सबको प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। निकेत जी, do you want to say something? Mukul ji, Sneh ji, and if Chitra ji is there, anybody, Vandana ji, anybody wants to say, please you can unmute and we can just say, otherwise we'll take Vishram and thank you. मुझे नहीं पता हेमा जी हैं अभी कि नहीं है, लेकिन हेमा जी आज आपने बहुत परम आनंद दिया, ऐसा आनंद की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल जीवंत कर दिया हमारी ब्रज की गोपी को। आज उसने शिव आराधना भी करी और उसने हमें झूलों पे भी झुलाया। उसने भगवान के झूले लगने से पहले तैयारी कर दी। हरि बोल, राधे राधे। ओवर टू यू निकेत जी। Looking forward to the next trip. ओके ओके, राधे राधे।